Hello students and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the numericals of class 9th physics, chapter number 8A, that is propagation of sound waves. Propagation of sound waves. But before starting the numericals, we need to understand the formulas, basic formulas which we are going to use in the numericals. The very first formula which we are going to use will be V is equal to F into lambda, or we can say that wave velocity is equal to frequency into wavelength. And the second formula which we are going to use will be frequency is equal to 1 upon time period, or we can also say it like that time period is equal to 1 upon frequency. So the first numerical is numerical number 1. The heart of a man beats 75 times a minute. What is its frequency and time period? Okay, the question says that the heart of a man is beating 75 times a minute, and what is its frequency? First of all, we need to understand that frequency means number of vibrations per second. Okay, so here it is related to heartbeat, so we will say number of beats per second. So first part we are gonna solve it like this. In 1 minute, in 1 minute is equal to 60 seconds. So in 60 seconds, number of beats is equal to 75. So in 1 second, number of beats will be less means divide 75 upon 60. Let us reduce. 15 4s are 60. 15 5s are 75, 5 upon 4. After solving it, let's solve this further. 4 1s are 4, 1.0, 4 2s are 8, 4 5s are 20. So the answer is 1.25 beats per second, or hertz also you can write. The second part is its time period. Second part, they are asking for the time period. Time period we can calculate with this formula. T is equal to 1 upon F. T is equal to 1 upon F. Here a trick which we are going to use over here is, I am not going to write it 1.25 per second. Okay, I am going to write it in the fraction form 5 upon 4. Now it can be reciprocal as 4 upon 5. And you know it very well that after solving this, you will get 0.8 seconds. So in this way, the frequency which we have got is 1.25 per second, and the time period is 0.8 second. Let us move on to the next numerical number 2. Numerical number 2 says, the time period of a simple pendulum is 2 seconds. The time period is given to you 2 seconds. And they are asking us its frequency. Again, very simple. The formula which we are going to apply will be frequency is equal to 1 upon time period. That is F is equal to 1 upon T. Let us put the value of T, that is 2 seconds. And the answer which we will get is 0.5 per second, or 0.5 hertz also you can write it. Understood? Now the next numerical is numerical number 3. The separation between two consecutive crusts in a transverse wave is 100 meter. Here the separation between two crusts means, students, wavelength. The separation between two crusts is known as wavelength. Let me tell you this. If suppose this we are taking displacement over here, and here we are taking distance, कि मान लीजिए हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं y एक्सिस पर और x एक्सिस पर डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये हमारा ग्राफ आएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ.
और जो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट होती हैं उनके बीच की डिस्टेंस को भी लैम्डा कहते हैं हम। और अगर हम एक तरफ और बना लें इसमें आगे इस तरह से, तो ये जो दो तरफ के बीच में डिस्टेंस होती है इसे भी हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव तरफ के बीच में वेवलेंथ। ठीक है, तो आइए आगे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में, कहता है कि दो सेपरेशन है किनके बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक लगातार क्रस्ट के बीच में, ऊपर वाली जो क्रस्ट होती है उनके बीच में, जो मैंने अभी आपको बताया, उनके बीच में जो डिफरेंस है या सेपरेशन है वो 100 मीटर का है। तो वेवलेंथ हमारे पास हो गई 100 मीटर। और सेकेंड पार्ट में आगे फर्दर मोर कहता है कि जो वेवलेंथ है इसमें वो 20 मीटर पर सेकेंड है, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट ही इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट, हमसे क्या कैलकुलेट करा, फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फॉर्मूला देखिए, जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यही हम यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी हमारे पास 20 है, फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है और वेवलेंथ हमारे पास 100 है। सो 20/100 इज इक्वल टू f 0.2 हर्ट्स। जी हाँ बच्चों, इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट है आपका, यूनिट इंपॉर्टेंट है मेंशन करनी। इसमें आप पर सेकंड भी मेंशन कर सकते हैं, हर्ट्स भी मेंशन कर सकते हैं। यूनिट का 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है बोर्ड एग्जाम्स में भी, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। आइए न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। अ लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो 0.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। स्पीड हमें दी हुई है 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे कहता है एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्स, और जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो 20 हर्ट्स है। What he is asking us to calculate, find the separation between two consecutive compressions। दो consecutive compressions के बीच का distance का मतलब हो गया बच्चों wavelength। wavelength और कुछ भी नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था, distance traveled होती है। तो हमें यहाँ पर wavelength निकालनी है। फर्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, यानी वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी की जगह 0.3 रख दीजिए, फ्रीक्वेंसी की जगह 20 और लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है। सो 0.3 अपॉन 20 इज इक्वल टू लैम्डा। डेसिमल रिमूव करिए, 3/200 इज इक्वल टू लैम्डा। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 3/100 को। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर 200 लिखा, 3 से डिवाइड करना, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा है। अभी हम डिवाइड हो नहीं सकता तो एक 0 बढ़ा के एक 0 बढ़ा लेते हैं, बोलिए। ठीक है, तो 200 बन जा 200, ठीक, ये 100 बच गया। अब ये अभी भी लेस है तो एक पॉइंट लगा हुआ, एक डेसिमल और बढ़ा ले सकते हैं हम आसानी से। 205 जो होंगे हमारे 1000 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.15 मीटर। ध्यान रखिएगा यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट में, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में थी और फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में थी। अब इसको अगर आप सोफिस्टिकेटेडली लिखना चाहें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी लिख सकते हैं आप। कैसे? इसको लिखेंगे 1.5 इस तरह से। देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या कहता है, टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल हमारे पास एक डिजिट होनी चाहिए। टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में हमारे पास एक डिजिट होनी चाहिए। हमने कितना शिफ्ट किया डेसिमल को, देखें तो ये लिखा है यहाँ पर 0.015 है ना, 0.015। तो हमने डेसिमल को 2 प्लेसेस शिफ्ट किया है टूवर्ड्स राइट, तो 10 to the power -2। ये लीजिए आपका आंसर। तो आप एग्जाम में इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं 0.015 मीटर पर भी, और आप यहाँ पर भी लाके कर सकते हैं इसको 0.15 इंटू 10 to the power -2 मीटर। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 कहता है कि अ सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूसेस 40 क्रस्ट एंड 40 तरफ्स इन 0.4 सेकेंड्स। 40 क्रस्ट हैं और 40 तरफ हैं, कितने सेकेंड्स में? 0.4 सेकेंड्स में। तो ये जो 40 क्रस्ट और 40 तरफ्स हैं, आप इसको एक तरह से, और आपसे कैलकुलेट क्या करा रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करा रहा है। तो ये जो 40 क्रस्ट और 40 तरफ्स हैं, इनमें से किसी एक को लेके आप वेवलेंथ मान सकते हैं। तो यहाँ 40 क्रस्ट और 40 वेवलेंथ के पर्सपेक्टिव से आप वेवलेंथ मान सकते हैं 40 मीटर, ठीक है। और हमें जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, जो टाइम दिया हुआ है, वो दिया हुआ है
0.4 सेकेंड्स का। ठीक, हमसे कैलकुलेट करा रहा है फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी का फंडा होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से वैसे तो टाइम जो लगा है इन क्रस्ट को पूरा करने में वो लगा हुआ है। चलिए अब न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। कहता है अ सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूसेस 40 क्रस्ट एंड 40 थ्रफ्स इन 0.4 सेकेंड्स। जो नंबर ऑफ क्रस्ट हैं वो भी 40 हैं और थ्रफ्स भी 40 हैं, और कितने सेकेंड्स में? 0.4 सेकेंड्स में। तो हम नंबर ऑफ क्रस्ट ले लेते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ क्रस्ट इज इक्वल टू 40, और जो टाइम लगा है इन क्रस्ट को कंप्लीट करने में वो 0.4 सेकेंड्स है। और आप जानते हैं बच्चों कि जो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट होती हैं, कॉन्जिक्यूटिव थ्रफ्स है, उससे वेवलेंथ भी बनती है। ठीक है, इस पार्ट में हमसे ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ क्रस्ट पर सेकंड कितने बन रहे हैं या नंबर ऑफ थ्रफ्स पर सेकंड कितने बन रहे हैं। तो देखिए इन 0.4 सेकेंड्स जो नंबर ऑफ क्रस्ट्स बन रहे हैं हमारे वो 40 हैं। सो इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ क्रस्ट तो कम बनेंगे। कम का मतलब क्या हो गया? डिवाइड बच्चों। ठीक है, यूनिटरी मेथड ये तो कहता है 0.4 डिवाइड में लाए, डेसिमल रिमूव करिए, ऊपर 0 बढ़ाइए, एक कितना आ गया? 100। तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये आ गई 100 हर्ट्स या 100 पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है भाई। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो आप उसे वाइब्रेशन हटा के, मैंने पहले न्यूमेरिकल में बीट्स लगाया था, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रस्ट कर लिया, कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट जो होंगी पर सेकेंड के हिसाब से। 1 सेकेंड पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6 न्यूमेरिकल कहता है एन ऑब्जर्वर ए फायर्स अ गन एंड अनदर ऑब्जर्वर बी एट अ डिस्टेंस 1650 दैट इज 1650 मीटर अवे फ्रॉम ए हर्ट्स इट साउंड। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो गन फायर करता है, दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि ए से 1650 मीटर की डिस्टेंस पर है, 1650 मीटर की डिस्टेंस पर है, और वो साउंड इसको सुनता है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम व्हेन बी विल हियर द साउंड आफ्टर द फायरिंग। सपोज कीजिए ये पर्सन ए है हमारा और ये पर्सन बी है, और अभी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमें बताई गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है 1650 मीटर। अब ए ने यहाँ पर फायर किया है, ठीक है, गन फायर करी, और कहता है कि जो गन फायर हुई है उसकी आवाज़ बी को सुनाई देती है। कितने सेकंड में, ये हमें पता लगाना कि ये साउंड कितने सेकंड में ट्रैवल हो जाएगी, टाइम कितना लगेगा ट्रैवल करने में। अगर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो कितनी है? 330 मीटर पर सेकेंड। बहुत बेसिक सा सवाल है, डिस्टेंस हमें दी हुई है, ठीक है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है, स्पीड भी दी हुई। भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है। तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस रखिए 1650 अपॉन स्पीड रख दीजिए 330 और उसको रिड्यूस कर लीजिए 165 अपॉन 33। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ठीक है, अब इसको 11 5 जा 55 ये लीजिए, तो ये आ गया हमारे पास 5 मीटर पर 5 सेकेंड। सॉरी, टाइम जो पूछा गया था हमसे वो आ गया 5 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड लगेंगे साउंड को ट्रेवल होने में, ए से जो फायर हुई है उसकी आवाज़ बी तक पहुंचने में, जबकि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1650 मीटर है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7। अभी हमने कौन सा किया था? 6th किया था, हाँ जी। तो 7th न्यूमेरिकल देखिए। द टाइम इंटरवल बिटवीन अ लाइटनिंग फ्लैश एंड द फर्स्ट साउंड ऑफ थंडर इज 5 सेकेंड। जो टाइम इंटरवल है बिजली चमकने में और पहली आवाज़ गड़गड़ाहट की आवाज़, जो बादल की गड़गड़ाहट की आवाज़ है, वो उसमें अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो 5 सेकेंड्स का है। कहता है जो टाइम इंटरवल है बिजली चमकने का और बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ का, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो 5 सेकेंड्स का है। आपको ये तो पता ही है कि लाइट की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वहीं जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में वो सिर्फ होती है 330 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कितना वास्ट डिफरेंस है, कितनी लेस है स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ लाइट से। तो इसलिए हमें लाइटनिंग
जो है वो पहले दिख जाती है और थंडर की जो आवाज़ होती है वो बाद में आती है, बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ वेरी लेस देन एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो जो डिफरेंस है वो 5 सेकेंड्स का है और कहता है आगे, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड, अगर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड है तो बताइए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फ्लैश फ्रॉम द ऑब्जर्वर, कि जो ये फ्लैश या जो लाइटनिंग चमकी है और जिस ऑब्जर्वर ने देखी उनके दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हमें सीधे सीधे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड हमारे पास है 330, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड्स है, 5 0 3 5 15 का 5 कैरी 1 3 5 15 और 1 16, ये लीजिए 1650 मीटर यानी 1650 मीटर। सिंपल था, बहुत आसान सा था, कैलकुलेशन कोई ज़्यादा भारी भी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 8, सेम टाइप का न्यूमेरिकल है जैसा 7 था। कहता है अ बॉय फायर्स अ गन एंड अनदर बॉय एट अ डिस्टेंस हियर्स द साउंड ऑफ फायर 2.5 सेकेंड्स आफ्टर सीइंग द फ्लैश, कि एक लड़का जो है वो गन फायर करता है, ठीक है, दूसरा लड़का उसकी आवाज़ सुनता है और आवाज़ भी कब सुनता है 2.5 सेकेंड्स बाद में, 2.5 सेकेंड बाद सुनता है जो फ्लैश चमकती है चिंगारी दिखने के बाद, गोली चलने के बाद जो चिंगारी दिखी फ्लैश दिखी उसके 2.5 सेकेंड बाद उसे आवाज़ आती है गोली चलने की। दोनों लड़कों के बीच में अगर मान लीजिए कहता है डिस्टेंस बताइए कितना होगा, दोनों बॉयज़ के बीच में डिस्टेंस कितना होगा अगर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। द टाइम इंटरवल और द टाइम डिफरेंस विच इज गिवन टू अस इज 2.5 सेकेंड्स प्लस द स्पीड ऑफ साउंड इज हेयर इन दिस न्यूमेरिकल इज गिवन 340 मीटर पर सेकेंड हमें दी हुई है। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और आपको सबको पता ही है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 340, टाइम 2.5 सेकेंड्स का। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले डेसिमल रिमूव करते हैं, नीचे 10 बना लेते हैं, 0 से रिड्यूस कर दिया हमने यहाँ पर और ये हो गया 25 4 100 का 0 कैरी 10, 25 3 75, ठीक है, 75 और 10 85। तो ये हमारे पास आंसर आया 850 मीटर, यानी जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 850 मीटर। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, बेसिक मल्टीप्लिकेशन ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट 9th न्यूमेरिकल देखते हैं। 9th न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द लाइन ऑफ 2 टैंक्स, एक ऑब्जर्वर है जो 2 टैंक्स दो टैंक्स हैं उनकी लाइन में कहीं बैठा है, वॉचेस द फ्लैशेस ऑफ 2 टैंक्स, पहले तो उसे फ्लैश दिखती है फायरिंग की, ईच अदर जो एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं टैंक्स एक ही टाइम में एट द सेम टाइम, वॉचेस द फ्लैशेस ऑफ 2 टैंक्स फायरिंग एट ईच अदर एट द सेम टाइम, बट ही हियर्स द 2 shots, but he hears the sounds of 2 shots 2 seconds and 3.5 seconds after seeing the flash। अब होता क्या हो क्या रहा है कि वो उन दोनों की लाइन में कहीं बैठा है टैंक्स की, और जब वो फ्लैश देखता है एक दूसरे के तरफ, जो फायरिंग होती है टैंक्स एक दूसरे पर फायर करते हैं उनकी फ्लैश देखता है, उसके 2 सेकेंड और 3.5 सेकेंड्स के बाद, 2 सेकेंड्स और 3.5 सेकेंड्स के बाद उसे आवाज़ आती है। अब अगर दोनों टैंक्स के बीच में 510 मीटर की डिस्टेंस है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टैंक्स इज 510 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, आप ये मान के चल सकते हैं कि ये हमारे 2 टैंक्स हैं, ये फर्स्ट टैंक मान लेते हैं और ये हमारा सेकेंड टैंक मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमें, 510 मीटर। 510 मीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और इन दोनों की लाइन में कहीं एक ऑब्जर्वर बैठा है, तो मान लेते हैं ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा है। वैसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जर्वर को आप इधर भी बैठा सकते हैं उधर भी बैठा सकते हैं, आइदर साइड कहीं भी बैठा सकते हैं, मैंने यहाँ बैठा दिया। ठीक है, अब ये जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है उसे 2 आवाज़ें आती हैं, एक पहली साउंड जो आती है वो आती है 2 सेकेंड्स बाद, ठीक है, और दूसरी साउंड जो आ रही है वो 3 सेकेंड्स के बाद आ रही है, 3.5 सेकेंड्स के बाद आ रही है। अब ध्यान से समझिए, यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है
कि जो पहली साउंड आई होगी 2 सेकेंड्स में वो नियर बाई वाले टैंक से आई होगी। भाई जो पहले आवाज़ पहुंची होगी उसके कानों तक, क्योंकि दोनों टैंक्स ने एक ही साथ फायरिंग की है, दोनों टैंक्स ने एक दूसरे पर जो फायर किया है, जो दोनों टैंक्स ने एक दूसरे पर फायर किया है वो एट द सेम टाइम किया है, एक ही साथ फायरिंग की है दोनों ने। तो जाहिर सी बात है इसका मतलब जो आवाज़ आई, अब वो आवाज़ का डिफरेंस क्या होगा, डिस्टेंस की वजह से होगा। यानी जो पास वाला टैंक होगा उसकी फायरिंग की आवाज़ पहले पहुंची होगी और जो दूर होगा टैंक उसकी आवाज़ बाद में पहुंची होगी, जाहिर सी बात है। तो यानी मान लेते हैं कि फर्स्ट टैंक से जो आवाज़ है वो सिर्फ 2 सेकेंड्स में पहुँच गई थी। ठीक है, जो फर्स्ट टैंक से आवाज़ थी वो सिर्फ 2 सेकेंड्स में उसके पास पहुंच गई, और जो सेकेंड टैंक है उससे जो आवाज़ पहुंची यहाँ तक उसने ले लिए 3.5 सेकेंड, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। भाई जो पास वाला टैंक होगा उससे आवाज़ जल्दी आ जाएगी फायरिंग की, और जो टैंक दूर होगा उस डिस्टेंस ऑब्जर्वर से, जो टैंक ऑब्जर्वर से ज़्यादा दूर होगा उससे आवाज़ देर में पहुँचेगी। तो माना सेकेंड टैंक से जो साउंड पहुँची वो पहुँची 3.5 सेकेंड्स में। तो देखिए 2 सेकेंड में तो साउंड ने ये वाली डिस्टेंस कवर कर ली, और 3.5 सेकेंड में यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर ली। तो ये जो डिस्टेंस की कवर की होगी साउंड ने कितने टाइम में करी होगी, ये कवर करी होगी 3.5 - 2 दैट इज़ 1.5 सेकेंड्स में। दोबारा से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए फर्स्ट टैंक से पीछे जो डिस्टेंस है ये ऑब्जर्वर और फर्स्ट टैंक के बीच में, माना ये 2 सेकेंड्स में ट्रैवल हो गई। फर्स्ट सेकेंड से आवाज़ जो आई टैंक से फायरिंग की वो 2 सेकेंड बाद आ गई, और जो सेकेंड टैंक से सेकेंड फायर की सेकेंड शॉट की आवाज़ आई सेकेंड टैंक से आई होगी वो देर से आई, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है ऑब्जर्वर से, वो 3.5 सेकेंड्स के बाद आई। तो 2 सेकेंड में तो ये डिस्टेंस ट्रैवल हो गई किसके, फर्स्ट टैंक के और ऑब्जर्वर के। तो दोनों टैंक्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो कितने सेकंड्स में होगी, पूरे 3.5 सेकंड में 2.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1.5। यानी जो डिफरेंस आया है हमारे पास इन टाइम वो हो गया 3.5 - 2 दैट इज 1.5 सेकेंड्स, और जो डिस्टेंस ट्रेवल की है इस डिफरेंस में वो 510 है। भाई यही तो डिस्टेंस है जो 1.5 सेकेंड्स में ट्रेवल हुई है, ये टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है और डिस्टेंस है। स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधे 510 अपॉन 1.5, 5100 अपॉन 15। ठीक है, चलिए 5 से काट 5 से कर लेते हैं, 5 3 = 15, 5 1 = 5 0, 5 2 = 10 0। अब 3 से रिड्यूस कर लेते हैं, 3 3 = 9, 3 4 = 12 0, 340 मीटर पर सेकेंड। देखिए तो बस इस न्यूमेरिकल का लॉजिक ये मेन है कि आपने ऑब्जर्वर को देखना है कहाँ पर सेट करना है उसको, इधर साइड या इधर साइड, और ये ध्यान में रखना है कि जो पहले टैंक्स के जो ऑब्जर्वर जहाँ भी आपने आइदर साइड एडजस्ट किया है, जैसे मैंने फर्स्ट टैंक की तरफ उसको इन द लाइन बैठाया है, तो उन दोनों जो फर्स्ट टैंक से है, जाहिर सी बात है क्योंकि ऑब्जर्वर पहले टैंक के पास में है तो उससे आवाज़ पहले आ जाएगी तो वो 2 सेकंड में आएगी, और जो सेकंड टैंक है वो दूर है ऑब्जर्वर से तो उससे जो आवाज़ आएगी वो 3.5 सेकंड बाद आएगी। तो ये ड्यूरेशन जो है डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये साउंड ने 2 सेकंड्स में ट्रेवल कर लिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का 3.5 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस जो दोनों टैंक्स के बीच में होगा वो कितने टाइम में ट्रेवल हुआ होगा, 3.5 - 2। ये इस जो है सॉल्यूशन का या न्यूमेरिकल का यूएसपी है। ये अगर आपने समझ लिया तो फिर न्यूमेरिकल में तो कुछ है ही नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए 10th न्यूमेरिकल देखिए, हाउ लॉन्ग विल साउंड टेक टू ट्रेवल इन एन आयरन रेल एंड सेकेंड इन एयर, बोथ 3.3 किलोमीटर इन लेंथ, take speed of sound in air to be 330 meter per second and in iron to be 5280 मीटर पर सेकेंड। कि कितना समय लगेगा साउंड को ट्रैवल होने में एक आयरन रेल में और एयर में, जहाँ पर दोनों की लेंथ 3.3 किलोमीटर है, और स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में चाहिए लेनी है वो 330 मीटर पर सेकेंड लेनी है, और जो आयरन यानी सॉलिड में लेनी है 5280 मीटर पर सेकेंड लेनी है। तो ठीक है, फर्स्ट केस ले लेते हैं। सबसे पहला केस यहाँ पर लेते हैं एन आयरन रेल, ये वाला केस हम कंसिडर कर लेते हैं एन आयरन रेल वाला, जहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस है 3.3 किलोमीटर की। तो पहले इस डिस्टेंस को किलोमीटर से मीटर में चेंज कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके। सभी को पता होगा आपको 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं, तो डिस्टेंस यहाँ से 3300 मीटर आ गई। जो स्पीड ऑफ साउंड है इन सॉलिड वो हमें दी हुई है 5280 मीटर पर सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू, हमें टाइम कैलकुलेट करना है,
जैसा कि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आइए वैल्यू पुट करते हैं। डिस्टेंस हमें दी हुई है 3300 और स्पीड हमारे पास है 5280। रिड्यूस करते हैं, 0 से रिड्यूस करा 330 अपॉन 528। चलिए पहले तो 2 से रिड्यूस कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक, और 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब ये 2 और 4 2 और 6 हो गए आपके 8, 8 और 4 हो गए 12, 3 से जा रहा है, और ये 6 और 1 7 और 5 12, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 8 ज़ा 24 और 3 8 ज़ा 24। यहाँ पर देखिए 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, हमारे पास अभी बचा 55 अपॉन 88। आइए 11 से रिड्यूस कर देते हैं, 11 5 ज़ा 55, 11 8 ज़ा 88, तो 5 अपॉन 8। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाया, 8 6 ज़ा 48, बचा कितना 2, पॉइंटर लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, तो कैरी उठा लिया 0, और 8 2 ज़ा 16, और यहाँ 0 फिर से उठा रहा है, 8 5 ज़ा 40। तो जो हमारे पास टाइम आया वो आया 6.25 सेकेंड्स। तो पहले पार्ट का आंसर है 0.625 सेकेंड्स। ये रहा हमारा पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। ये बी पार्ट चेक करते हैं। 10th क्वेश्चन का बी पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमें इस बार एयर के लिए कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने आयरन के लिए कैलकुलेट किया था, सेकेंड पार्ट में हमें एयर के लिए कैलकुलेट करना है। कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस है हमारे पास 3300 मीटर। मैंने जो 3.3 किलोमीटर डिस्टेंस दी हुई थी उसको डायरेक्टली अभी मीटर में लिख लिया पहले पार्ट से कैरी ओवर करके, और जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमें दी हुई है वो 330 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो बस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 330 अपॉन 330, 0 से 0 रिड्यूस किया यहाँ पर, और 33 1 जा 33, और 33 10 जा 330, तो यहाँ पर टाइम हमारे पास 10 सेकेंड्स आ गए। आइए 11th न्यूमेरिकल चेक करते हैं। 11th न्यूमेरिकल में क्या कहता है, केस 1 में कह रहे एज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। मानिए कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, मान के चलिए कि जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो 340 मीटर पर सेकेंड है, और वाटर में जो है वो 1360 मीटर पर सेकेंड है। और ये बताइए कि साउंड कितना टाइम लगेगा साउंड को ट्रैवल करने में डिस्टेंस 1700 मीटर की, 1700 मीटर की डिस्टेंस साउंड को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा एयर में और वाटर में। तो मैंने फर्स्ट केस यहाँ पर एयर के लिए कंसीडर किया है। डिस्टेंस हमें दिया है 1700 मीटर, और स्पीड ऑफ साउंड जो हमें एयर में दी है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 1700 अपॉन स्पीड 340, 0 से 0 रिड्यूस, 17 1 जा 17, तो ये 10 आ गया, और 17 2 जा 34, फिर 2 5 जा 10, 5 सेकेंड्स आ गया, सिंपल था। और केस 2 हमारा जो हमने यहाँ पे लिया है अंडर कंसिडरेशन वो वाटर के लिए है, सेकेंड पार्ट वाटर के लिए। डिस्टेंस सेम ही रखी है दोनों पार्ट में। क्वेश्चन में डिस्टेंस जो लेनी है वो एयर के लिए भी 1700 मीटर ही लेनी है, और वाटर के लिए भी 1700 मीटर लेनी है। बस चेंज ये है कि वाटर में जो साउंड की स्पीड है वो 1360 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 1700 और अपॉन स्पीड 1360, 0 से 0 रिड्यूस करा, 170 अपॉन 36, इसको 2 से रिड्यूस करते हैं, 2 6 जा 12, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर उसको भी 2 से रिड्यूस करते हैं, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, 85 अपॉन 68, इसको 17 से रिड्यूस कर लेते हैं, 17 5 जा 85 और 17 4 जा 68, तो ये हमारे पास आ गया 5/4 सेकेंड्स। तो 5/4 को जब हम और फर्दर सॉल्व करेंगे डेसिमल में तो ये 1.25 सेकेंड्स आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 1.25 सेकेंड्स। तो ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए साउंड के न्यूमेरिकल्स, 8th A के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। अगली वीडियो के लिए कीप वॉचिंग।